ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற அந்த வாஞ்சையை கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. துதிக்கிற ராஜா, சொப்பனத்திலே தரிசனத்திலே பேசி வழிநடத்துங்கப்பா. துதிக்கிற ராஜா, லிவிங்காக கூட ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. துதிக்கிற ராஜா, இஸ்ரவேல் இந்த பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களப்பா, ஆலயத்திற்கு வராதவாறு தேவாதி தேவனே உள்ளத்திலே சொப்பனத்திலே தரிசனத்திலே பேசி நீர் வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே, கல்யாணத்துல இருந்து ஆண்டவரே பதலாபுரம் காவு வரை உள்ள குடும்பங்களை எல்லாம் நாங்கள் நினைவுறுத்துறோம்ப்பா. யார் யார் இன்றைய நாளில் ஆலயத்திற்கு வராதபடி இருக்கிறார்களப்பா, அவர்களோடு நீர் பேசி கிரீச்சையாக ஜெபிக்கிற ராஜா. வார்த்தையான தேவனப்பா, வார்த்தையை கொண்டு நீர் பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. துதிக்கிற ராஜா, ஆமென் கர்த்தாவே. வருகிற நாட்களிலே சபைக்கு வரத்தக்கதாக ராஜா, குடும்பமாக ஒவ்வொரு ஆலயத்திற்கு வரத்தக்கதாக ராஜா, இந்த ஆலயம் நிரம்பி வழியில் நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அவரே ஆலயத்திற்கு வந்தோம், நாங்கள் இவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்ற அந்த சமாதானத்தை சந்தோஷத்தோடு ஒவ்வொரு சொல்லத்தக்கதாக ராஜா, அந்த வேலையை கிரீச்சையாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. துதிக்கிற ராஜா, ஆமென் கர்த்தாவே. யார் யாரெல்லாம் ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியோடு இருந்து வர முடியாமல் இருக்கிறார்களப்பா, அவர்களுக்கு எல்லாம் நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. துதிக்கிற ராஜா, அல்லையா, அவர்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே எல்லா தடைகளையும் நீக்கி வருகிற நாட்களை கூட்டி சேர்க்கப்பா. ஆண்டவரே, உங்களுடைய வருகை ஆண்டவரே எப்பொழுது வேண்டாமலும் இருக்கலாம் ராஜா. குடும்பமாக அந்த நோவா குடும்பத்தை போல ஆயுதத்தோடு எப்பொழுதும் காணப்படத்தக்கதாக ராஜா நிறைய உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா, ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பத்தை நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா. துதிக்கிற ராஜா, வருகிற நாட்களை கூட்டி சேர்க்கப்பா. ஆலய நிரம்பி வழியை உதவி செய்யப்பா. துதிக்கிற ராஜா, ஆலயத்தினுடைய பிரசன்னம் இருக்கட்டும் ராஜா. துதிக்கிற ராஜா, ஆலயத்திற்கு வந்தோம் ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிரசனத்தினால நாங்கள் நிரம்பினோம் என்று ஒவ்வொரு வாயிலும் சொல்லத்தக்கதாக ராஜா தேவனே நீர் கிரியை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிற ராஜா. இந்த சாலமோன் கட்டின ஆலயத்தை நீர் எப்படி அபிஷேகித்தீரப்பா, அதே விதமாக ராஜா இந்த சபையை நீர் அபிஷேகித்து வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. துதிக்கிற ராஜா, வந்திருக்கிற எங்களுடைய சமூகத்தில் தாழ்த்துக்கிறோம்ப்பா. திருமணம் ஆகிய ஆண்டவரே நன்றியப்பா. ஆண்டவரே, ஆண்டுகள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறதப்பா. பிள்ளைகளை கர்ப்பத்தின் கனினால நிரப்புங்கப்பா. துதிக்கிற ராஜா, இயேசுவே துதிக்கிறோம்ப்பா. கர்ப்பத்தின் கனி கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம்ப்பா. தேவாதி தேவனே, உம்மால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சுதந்திரத்தை பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. தேவாதி தேவனே, பிள்ளைகளை தொடுங்கப்பா. ஆண்டவரே, என்னென்ன தடைகள் இருக்கிறதோ, என்னென்ன பலவீனங்கள் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொட்டப்பா. ஆண்டவரே, எந்தெந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவரே சுதிக்கிற ராஜா கர்ப்பத்தின் கனி நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. தொடுங்கப்பா. கணவன மனைவியாக நீர் தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. இயேசுவே தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. சபையில சாட்சியின் ரூபத்திலே குடும்பமாக நாங்கள் காணத்தக்கதாக ராஜா தேவனே இந்த அற்புதத்தை செய்து கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. உங்களுடைய சுதந்திரத்தை பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய சமூகத்திலே தாழ்த்துக்கிறோம்ப்பா. துதிக்கிறோம். மீதியான ஆராதனை வேலையை நீர் பொறுப்படுத்தி வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஆமென். बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, आत्मा में नाचो, आत्मा में नाचो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। करेंगे, धन्यवाद देंगे। प्रभु महान है, प्रभु हमसे बातें करे। अंतिम समय में परमेश्वर के साथ में जब शिष्य लोग चल रहे थे, चलते 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 भीड़ कम होते चला गया। आखिर में जब रूपांतर पहाड़ में प्रभु जब गए, शास्त्र में कहता है वहाँ पतरस, यूहन्ना, याकूब उनको परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, प्रकट करके बताया। आज भी वचन के लिए जो प्यासे हैं वो लोग मरेंगे तो भी कलीसिया में ही आके मरेंगे। अगर वचन पे जो प्यार नहीं करेगा, प्रयास नहीं है, परमेश्वर से प्यार नहीं है, उनको कितना भी बता कर देखो वो लोग अंदर आने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमारी
मन में यह विचार आना चाहिए, कैसे भी हालात में मैं प्रभु के घर में जाऊं और प्रभु के घर में गिर पड़ूं, क्योंकि जीवन प्रभु के घर में है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, सब लोग आंखों को बंद करेंगे, जितने आए उतने अपने आप को भूल कर प्रभु को स्तुति कीजिए, धन्यवाद कीजिए। प्रभु को स्तुति धन्यवाद से, जय जयकार से प्रभु की महिमा कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। सब लोग आंखें बंद करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप बड़ी आवाज से, ऊंची आवाज से आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ा सकते। सभी लोग मुंह खोलो, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उसका वादा सच्चा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से करके वादा किया जाए। सब लोग स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हृदय की गहराई से आपके घर परिवार में जो भी बंधन है, वो सारा बंधन को प्रभु यीशु मसीह तोड़ने के लिए तैयार है। आप सिर्फ स्तुति और धन्यवाद और महिमा कीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब स्तुति के लिए थैंक यू। हमारे जरूरतों को पहचानता है और हमारे जरूरतों को पूरा किया करता है विश्वास। जो भी दुख तकलीफ सहन है, परमेश्वर आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए मेरे पास, वो आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है। अपने हृदय को खोल कर पूरे मन से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस सेनाओं का यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र 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 पवित्र। जैसा आप पवित्र हैं, वैसे ही हम लोगों को आपके वचन द्वारा पवित्र करना। इंसान को बनाया तूने ताकि तेरी स्तुति और आराधना कर। शायद से हमसे गलती हुआ होगा परमेश्वर, ये दुनिया के लोग में हम चले गए होंगे, तेरी स्तुति आराधना करने के योग्य नहीं होंगे परमेश्वर। पर आज हम हमारे खुले हृदय, हमारे तन मन दिलों के साथ में तेरी स्तुति करते हैं। हमारे हृदय को छू,
ताकि हमारे मुख से केवल तेरी स्तुति और आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये महान कर जाएगा, ये महान कर जाएगा, ये महान कर जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये महान कर जाएगा, ये महान कर जाएगा, ये महान कर जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय जय। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
आवाज उठाएंगे नारिक सताम को तूफान के सागर में मनुष्य आया आकाश से सागर में नारिक सताम को तूफान के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में मुक्ति का तू दाता है हम सब सबको बताएंगे है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे देंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ें। इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय, क्षमा कीजिएगा 13वां अध्याय 8वां। இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். ஆமென். यीशु मसीह कल और आज और युगानन एक सा है। आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। शास्त्र में कहता है प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से चर्च जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब शास्त्र लेख के अंदर हमने वचन पढ़ा। शास्त्र लेख कहता है प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। आमीन। नबी यहाँ कहने के समय पर कहते हैं यीशु मसीह अपने आप को जो था, जो है और जो आने वाला सर्व सामर्थ्य परमेश्वर करके यूहन्ना को अपने आप को क्या कर रहा है? प्रकट करके बता। इसके विषय में यदि हमें प्रकटीकरण ना हो तो बड़ी मुश्किल में हम चले जाएंगे। नबी कहता है उसके लिए तू परमेश्वर को ढूंढ, क्योंकि प्रकटीकरण परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, ना ही मनुष्य के ज्ञान से। बहुत सारे लोग वचनों को क्या करते हैं? बायहार्ट करते हैं। नबी कहता है तू कितना भी वचन को बायहार्ट कर ले, याद कर ले, वो प्रकटीकरण तुझे नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा के बिना यीशु को मसीह करके, मतलब यहोवा करके कोई भी कहना नहीं चाहिए करके हम शास्त्र लेख में 1 कोरिन्थी 12वां अध्याय 13वां वचन में हम देखे थे। इसलिए कलीसिया और कलीसिया के हर एक सदस्य पहला
पवित्र आत्मा को क्या करना चाहिए? पाना चाहिए। उसको पाने के लिए जितना समय आप परमेश्वर के सम्मुख में बिताना चाहते हैं, उतना समय आप परमेश्वर के सम्मुख में क्या कीजिए? बिताइए। किसी भी हालात में इस पवित्र आत्मा को क्या कीजिए? पा लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही हमें वो प्रकटीकरण मिलता है यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा के बिना यीशु के बारे में तुमको जानकारी, प्रॉपर जो जानकारी मिलना चाहिए, वो क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए पहला कोरिन्थियस 2 अध्याय 11वां वचन में क्या लिखता है? देखिए, पहला कोरिन्थियस 2 अध्याय 11वां वचन। மனுஷனில் உள்ள ஆவியே அன்றி மனுஷரில் எவனும் மனுஷனுக்குரியவர்களை அறிவான். அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியே அன்றி ஒருவனும் தேவனுக்குரியவர்களை அறிய மாட்டான். बस इतने पढ़िए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। देख लेना, मनुष्य के विषय में जानने के लिए उसको कौन सा आत्मा चाहिए? मनुष्य का आत्मा चाहिए। मनुष्य के आत्मा के बिना मनुष्य के बारे में तुम क्या नहीं कर सकते? जान नहीं सकते। वैसे ही परमेश्वर के आत्मा के बिना आप परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? जान नहीं सकते। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर की आत्मा को पाना जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो प्रत्येक वचन से प्रभु आपके साथ में बात करेगा, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक वचन हाँ और आमीन करके है। प्रत्येक वचन कैसा है? हाँ और आमीन करके हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां परमेश्वर के आत्मा इन बातों को जिनको प्रकट करना चाहते हैं उनको, उनके अलावा दूसरा कोई ये क्या नहीं कर सकते? जान नहीं सकते। इस संसार के अंदर सारे चीजों से बढ़कर परमेश्वर की प्रकटीकरण के लिए परमेश्वर के साथ में हमको चलना और झगड़ना बहुत ही जरूरी है और जरूरत बात है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर जितने भी सच्चाइयां हैं उसको आप स्वीकार करने के बाद में भी अगर पवित्र आत्मा आपको इसको खुलासा करके नहीं देंगे, प्रकट कर कर नहीं देंगे, तो बहुतों को ये सच्चाई के बारे में क्या नहीं होता? जानकारी नहीं होता। तो कितना भी पैदा से क्रिश्चियन हो वो कुछ मायने नहीं रखता। तो क्रिश्चियन घर में पैदा होने से भी कुछ मायने नहीं रखता। तुमको परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की आत्मा का प्रकटीकरण आपको बहुत ही जरूरी है। तब चल के ये सच्चाई को तुम लोग क्या कर सकते? जान सकते। उसके बाद में हम लोग देखे थे 2 कोरिन्थियस 5वां अध्याय 21वां वचन को। वो यीशु हमारे लिए நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு हम लोग उसके अंदर क्या बनना चाहिए? परमेश्वर का धार्मिकता बनने के लिए பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். वो पाप को नहीं जानता था, हमारे लिए उसको क्या बना दिया? पाप बना दिया। इसके विषय में हम लोग पिछले हफ्ते में देख रहे थे, जो जंगल में ओलों को चलाकर आने के समय में लोगों को सांप काटा। जिन्होंने उस लकड़ी पर टंगा हुआ सांप को जिन्होंने देखा वो लोग क्या हो गए? बच गए, और जो नहीं देखे वो लोग क्या हो गए? मर गए, है ना। तो फिर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक पुत्र को क्या कर दिया? बेच दिया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो हमारे लिए पाप बना करके लिखा, पापी हो गया करके नहीं, हमारे लिए वो क्या बना? पाप बना। किस रीति से नबी बात करता है? देखिए, यीशु நமக்காக பாவமானார் என்னும் குறிப்பிடுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறது. பாவம் உள்ளவரானார் என்று அது கூறாமல் நாம் அவரோடு ஐக்கியம் கொள்வதன் மூலம் தேவனுடைய நீதியாக ஆவதற்கு அவர் நமக்காக பாவமானார்। आमीन। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए क्या बन गया? वो पाप बन गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग उसके साथ में संगति करेंगे तब चल के हम परमेश्वर का धर्मी बनेंगे, धार्मिकता बनेंगे। बच्चों से मत खेलो, बच्चों को यहाँ वहां दौड़ने मत दो,
वचन की तरफ गौर करो। चर्च में आते हैं तो चर्च में बैठा करो, बाहर टहलने के लिए या घूमने के लिए यहाँ नहीं, यहाँ प्रभु की आराधना करने के लिए हम आए। तो यहाँ कहता है वो हमारे लिए पापी बना, उससे हम लोग क्या करना चाहिए? संगति करने से हम लोग परमेश्वर का क्या बन गए? धर्मी बन गए, धार्मिकता बन गए। और इस सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। और वचन जो है, पवित्र शास्त्र, इस सच्चाई को हमारे लिए अंतिम समय के नबी के जरिए प्रभु ने क्या किया? इसको खुलासा कर दिया। आमीन। बहुत सारे लोगों को वचन अच्छा लगता है, लेकिन वहां उनके पास प्रकटीकरण नहीं है। लेकिन हमारे पास प्रभु वचन को भी दिया और वचन के साथ साथ में क्या दिया? प्रकटीकरण को भी क्या दिया है। अब वचन का प्रकटीकरण जब आता है, उस वचन को वो क्या करता है? जिलाता है। और उस जिलाया हुआ वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, हम भी मसीह में क्या हो जाते हैं? जिलाए जाते हैं। शास्त्र ले कहता है पहले हम पाप के अंदर क्या हुए थे? मरे हुए थे, लेकिन मसीह ने हमें क्या किया? जिलाया। यदि मसीह ने हमें जिलाया है तो हमको इस दुनिया में जिंदा जीवित हम मसीह का गवाह बनकर क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। बोलो हालेलुया। हम लोग किसका गवाह बनना चाहिए? मसीह का गवाह बनना चाहिए। अब नया करार के अंदर आने के समय में मूल भाषा के बारे में बताने के समय में यूनानी भाषा के बारे में बात कर, ग्रीक, तमिल ने ग्रीक को बोल दिया। कौन सा भाषा के बारे में बात कर रहा है? यूनानी भाषा के बारे में। ये तुम्हारा शास्त्र को जानने वाले शास्त्री लोग इस रीति से वो बात करते हैं, और वो लोग सोचकर बैठे हैं कि परमेश्वर इस दुनिया को यूनानियों के जरिए एक जनरल लैंग्वेज को और यहूदियों के जरिए एक सच्चा मार्ग को और यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर को जानने का ज्ञान को और रोमियो के जरिए एक स्थिर साम्राज्य को और विधियों को, बहुत बड़े बड़े रास्ता को दिलाया करके बहुत सारे ये शास्त्र का पंडित लोग इस रीति से कहते हैं। लेकिन सच्चा मार्ग को सिखाने के लिए एक अच्छा भाषा और उस मार्ग को फैलाने के लिए एक सच्चा गवर्नमेंट और बड़ा मार्ग को भी यहोवा ने दिया। और वेद के मतलब शास्त्र के दिनों से ही ये यूनानी भाषा जो है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है करके लोग बता रहे। ऐसा नहीं है, हर कोई भाषा में गड़बड़ है। हर कोई भाषा में क्या है? गड़बड़ी है। आपको पता है उत्पत्ति में पहला अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक कितना भाषा था? एक ही भाषा था। इधर से लेकर पहला अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक कितना भाषा था? एक ही भाषा था। लेकिन जब 11वां अध्याय में निम्रोद ने ये संसार के अंदर एक साम्राज्य को बनाने के लिए शुरुआत किया, बोले एक टावर बनाएंगे और उस टावर के जरिए हम किधर पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में पहुंच जाएंगे करके जब मनुष्य का ज्ञान से उसने क्या किया? तैयार करने के लिए शुरुआत की, तब शास्त्र लेख कहता है परमेश्वर ने भाषाओं को क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। भिन्न भिन्न भाषाएं वहां से क्या हो गई? उत्पन्न हो गई। तो आज दुनिया के अंदर चल रहा है, तुम यही भाषा में और यही नाम में प्रभु को पुकारना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। हर कोई अपने मातृभाषा में हम अपने प्रभु को क्या कर सकता है? पुकार सकता है। और आप अपने मातृभाषा में जब अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परमेश्वर ये नहीं कहेगा तुम मुझे हिब्रू से बुलाओ या यूनानी से बुलाओ, तुम तुम्हारे मातृभाषा में प्रभु के साथ में क्या कर सकता है?
बात कर सकता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि सभी भाषा को किसने लेकर आया दुनिया में? परमेश्वर ने ही लेकर आया। आमीन। अब यहाँ ये यूनानी भाषा के अंदर भी प्रॉब्लम है। कोई बोलते हैं कि ये यूनानी का साहित्य जो पढ़कर उसमें जो पंडित बने और नया करार जो उनको सिखाता है और उसको वो लोग अच्छी रीति से समझ सकता है करके वो शास्त्री लोग कहते हैं। नबी कहता है इसका मतलब एक संस्था में जो यूनानी है और दूसरा संस्था में जो यूनानी है, फिर ये दोनों के बीच में क्यों भेदभाव आ रहा? ये दोनों के बीच में क्यों फासला आ रहा? तो परमेश्वर के पास आने के लिए कोई भाषा रुकावट नहीं बन सकता है। परमेश्वर के पास आने के लिए एक ही चीज चाहिए, विश्वास। और विश्वास कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए। क्योंकि उसके पास आने वाला, उसको ढूंढने वालों को सभी प्रकार के जरूरतों को वो पूरा करता है करके उसको क्या आना चाहिए? विश्वास आना चाहिए। और शास्त्र कहता है विश्वास करने वालों के लिए सारा चीज संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो इसी कारण से नबी कहता है यूनानी साहित्य भी वो अलग अलग मतलब को दे सकता है, इस रीति से वो बना है करके वो क्या कर रहा है? यहां बता। बरगमु कलीसिया के दिनों में रेवलेशन पहला अध्याय में आइए। पहला अध्याय के अंदर वो 7 चर्चेस का नाम को बता रहे। देखिए क्या वचन? அது நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி ஆசியாவில் இருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்திரா, சர்தை, பிலடெல்பியா, லவோதிக்கியா என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள 7 சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினர். जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। उसको पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के बीच में भेज दे। अर्थात एफेसस और स्मुरना, पेरगमन। यहाँ नबी बात करने के टाइम में बोलता है पेरगमन का कलीसिया के युग में निसाया काउंसिल वहां क्या हुआ? शुरुआत होने के समय में यहां 2 चीज के बारे में बताता है, एरियस और अथेनियस। ऐसे 2 यूनानी के वहां पंडित लोग थे और ये दोनों जन उस यूनानी के अर्थ के बारे में तर्क वितर्क मतलब वाद विवाद किए। इसके वजह से पूरा दुनिया के अंदर जितने भी यूनानी अपना पंडित लोग थे उनमें से 2 ग्रुप हो गया। कितना ग्रुप हो गया? 2 ग्रुप हो गया। और नबी कहने के समय पर कहता अगर यूनानी भाषा परमेश्वर से अंगीकार अगर किया हुआ भाषा है तो फिर उस भाषा के विषय में इतना बड़ा तर्क वितर्क होने का कारण क्या है? तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां डॉक्टर मार्क रसन के बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है कि एक दोबारा जन्म लेने के बाद
पवित्र आत्मा को पाया करके शास्त्र लेख कहता है। इसको अंग्रेजी में प्रोफेसी करके क्या किया गया, उसको ट्रांसलेट किया गया है। इसका यूनानी का अर्थ टीचिंग, पोदगो। इसका अर्थ, उसके बाद में वो लिखता है कि स्त्री जो है बिना रुकावट वो लोग प्रचार कर सकता है। कभी निसाया काउंसिल के टाइम में जो हुआ उस बात के बारे में बता रहा है, जबकि शास्त्र लेख यहां गवाही देता है स्त्री कलीसिया में प्रचार नहीं करना चाहिए। स्त्री कलीसिया में कैसा रहना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। स्त्री को प्रचार करने के लिए कलीसिया में क्या नहीं है, अनुमति दिया गया नहीं है। परमेश्वर का शास्त्र लेख इस रीति से कहता है। ये अपना पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसमें 12वां वचन को पढ़ें, 11 और 12। ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றிலும் அடக்கமுள்ளவளாயிருந்து அமைதலோடு கற்றுக்கொள்ள கடவள். உபதேசம் பண்ணவும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் ஸ்திரீயானவளுக்கு நான் உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை, அவள் அமைதலாய் இருக்க வேண்டும். देख लेना हिंदी में। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 11-12 पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए। सेवक चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। ना पुरुष के ऊपर क्या ना चलाए, आज्ञा चलाए। ये बाइबल है। वरन वो कैसा रहे, चुपचाप रहे। शास्त्र में कहता है पुरुष के ऊपर स्त्री क्या नहीं करे, अधिकार ना चलाए, और कलीसिया में वो क्या ना करे, उपदेश ना करे। बोलो हालेलुया। आजकल तो औरत लोग आदमी को कुत्ता बिल्ली को बुलाने जैसा बुला रहे हैं, सीधा पप्पी टम्मी टोमी जामी करके जो बुलाता है वैसा उसका आदमी का नाम से ही बुलाता है। कभी कभी मेरे को ऐसा गुस्सा आता है, करेगा क्या? औरत आदमी को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सीधा नाम से बुलाती है। एक जमाना था कोई भी औरत अपना आदमी का नाम नहीं लेती थी। कोई भी अगर सरकारी आदमी कुछ जनगणना कुछ भी काम के लिए आता तो ना तुम्हारा आदमी का नाम बताओ बोलने से बच्चे को बुलाता था, बोलता तेरा बाप का नाम बता कर। अभी औरत आदमी को सीधा नाम से ही बुलाती है और उसके ऊपर अधिकार चलाने के लिए कोशिश करती है। यहाँ शास्त्र में कहता है औरत आदमी के ऊपर क्या ना करे, अधिकार ना करे, और औरत कलीसिया में प्रचार ना करे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह जब संसार के अंदर जीवन व्यतीत करते थे तभी उन्होंने जो बोला भाषा जो है आरामिक भाषा में उन्होंने बात किया। लेकिन नया करार जो लिखा गया है हम सबको मालूम है वो यूनानी भाषा में क्या किया गया है, लिखा गया है। और जुना करार को आप देखेंगे तो इब्रानियों में क्या किया गया है, वो लिखा गया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अभी शास्त्र लेख के अनुसार हम लोग यदि देखेंगे हर एक कलीसिया के सदस्य परमेश्वर के आत्मा से क्या होना चाहिए, भरना जरूरी है। जब तक तुम नहीं भरोगे तुम लेट ही आओगे कलीसिया के अंदर। जितना तुम्हारा ऑफिसर का डर है, 8 घंटा ऑफिस में काम करने का है, उस ऑफिसर का जो डर तुम्हारे मन में है, अनंत काल तक तुमको परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है, उस परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर उस परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर होगा तुम बराबर क्या करोगे, लोग
आओगे या नहीं आओगे? इधर लेट जाएगा तो आधा दिन का पेमेंट कटेगा, इधर जो लेट आएगा अनंत काल के जीवन को खोएगा। इसको खोएगा? आधा दिन का पेमेंट चाहिए या अनंत जीवन चाहिए? सोच कर रख लेना। प्रभु का घर भाई और भक्ति के साथ दौड़ते हुए कांपते हुए प्रभु के घर में आके गिरना चाहिए। हालेलुया। अब देख लेना परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां हमारे लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता और पवित्र आत्मा आकर उस वचन का व्याख्यान कर देना, यही हमारे लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगातार जब पवित्र आत्मा के अंदर एक कलीसिया मगन होते रहता है, उस कलीसिया के अंदर स्वयं परमेश्वर मंडराते रहता है। जो खुदा आदि में जल के ऊपर मंडरा रहा था, वही खुदा आज जल कौन है? हम ही जल। रेवलेशन 17वां अध्याय में वो वेश्या स्त्री बैठा हुआ जल के बारे में वर्णन करने के टाइम में वो क्या बोल रहा है? वहां लोग, भाषा, सभी जाति के लोगों के ऊपर वो क्या की है? बैठी है। तो आज हम लोग परमेश्वर का यदि वो पानी है तो हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा की वर्षा क्या होना चाहिए? मंडराना चाहिए, मगन होना चाहिए। सिर्फ गीत गाने से नहीं चलेगा। मगन हो हर दिन मगन होकर। वाकई में हम लोग क्या करना चाहिए? आत्मा में मगन होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6वां वचन को पढ़ना। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து अपने ऊपर प्रेम करके தமது இரத்தத்தினாலே किसका लहू से? खुद परमेश्वर बात कर रहा है। उसका खुद का लहू से हमें क्या किया है? धोया और शुद्ध किया। हमारे के ऊपर कितना लहू है? एक ही लहू है। कितना लहू? एक ही लहू है। क्योंकि शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, सबको कितने लहू से उसने सृष्टि किया? कितने लहू से? सब लोगों को कितना लहू से सृष्टि किया? एक ही लहू ना? हेलो। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय 26वां वचन को पढ़ना। पढ़ो जल्दी। உலகத்தையும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறதில்லை। हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वो क्या नहीं करता? 26 மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே இரத்தத்தினால் தோற்றம் பண்ணி பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்க செய்து कितना लहू? हेलो, कितना लहू? एक ही लहू। पूरा जनजाति को परमेश्वर ने कितना लहू से निर्माण किया? एक ही लहू से। मतलब आदम और हव्वा को प्रभु निर्माण करने के टाइम में कितना लहू से? एक ही लहू से। जब तक शैतान एदेन के अंदर आया नहीं, वहां हव्वा के साथ मिलावट हुआ नहीं, उसके पहले वो लोग कितना लहू के अंदर थे? एक ही लहू के अंदर थे। आमीन। फिर इसमें मिलावट आने के वजह से वापस उस एक ही लहू में हमें लेकर आने के लिए प्रकाशित वाक्य 1:6 के अनुसार वो खुदा कोई देवदूत को नहीं भेजा या कोई भविष्यद्वक्ता को नहीं भेजा,
वो खुद उतरकर क्या किया, आया और अपने आप को उसने क्या किया, बलिदान किया और उसने अपने खुद के लहू से हम सब के पापों को धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी बनाया और उसके सामने हमको बेटा और बेटियां बना। आप लोग विश्वास करते हैं आप परमेश्वर का बेटा, आप परमेश्वर का बेटी है? क्योंकि शास्त्र लेख हमें सिखाता है, यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 14वां वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, जैसे पिता की एकलौते की महिमा। 12 पढ़ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उनको क्या होने का अधिकार दिया? परमेश्वर का संतान। तो हम लोग किसका संतान है? परमेश्वर का संतान है कि नहीं है? जिस घर में हम लोग जब बचपन में थे, दिन भर अच्छा खेलने का, जब पिताजी घर में आने का टाइम हो गया, ड्यूटी से अभी घर आने वाला है, तो इधर भी रहेगा वो समय में भाग के सीधा घर में आके हाथ पैर मुंह धो के सब किताब लेके बैठ जाए, जैसे कि दिन भर हम लोग पढ़ाई में मगन। किसका डर? पिताजी का डर। आज आप और मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी है और प्रभु का घर 10 बजे खुलता है, तो पिताजी का डर मानो और 10 बजे के पहले आकर क्या करो? किधर बैठो? प्रभु के घर में बैठो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के घर में सुकून है, परमेश्वर के घर में आनंद है, परमेश्वर के घर में मेल मिलाप है, परमेश्वर के घर में अनंत जीवन है और परमेश्वर के घर में ही उठाए ले जाने का भोजन है। बोलो हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारा पिता है, मलाकी में अच्छे रीति से बात करता है, यदि मैं तुम्हारा परमेश्वर है, यदि मैं तुम्हारा पिता है, तो मेरा डर किधर है? होता है ना प्रभु? यदि मैं तुम्हारा पिता है तो मेरे लिए डरने वाला वो डर किधर है करके परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। यदि परमेश्वर हमारा पिता है तो उसका डर, उसका भय हमारे अंदर हमेशा हमेशा रहना जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा कौन है? पिता है। हम उसके बेटा और बेटियां हैं और शास्त्र ले कहता है यहां उसने अपने खुद के लहू से हमें क्या किया है? धोया और शुद्ध किया। अब आइए कोलोसियों का किताब 1 अध्याय 13वां वचन के अंदर। இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாய் இருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमको अंधकार से प्रभु ने छुड़ाया? और किधर प्रवेश किया करके बोलता है? उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश प्रभु ने हमें क्या किया है? कराया है। वापस पढ़ो वो वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश करवाने वाला नहीं है, ऑलरेडी क्या कर दिया? बोलता कराया। परमेश्वर का राज्य क्या है? वही पवित्र आत्मा है। प्रियो, अंतिम समय का संदेशता के जरिए हमको जो प्रकाशन मिला है यही है। वो परमेश्वर का राज्य के अंदर हमें क्या किया? उसने प्रवेश कराया करके बोलता। पहले अंधकार के अंदर थे, पहले हम अंधकार के बच्चे थे, हमारे सारी क्रिया अंधकार थी,
अब प्रभु हमें ढूंढ कर आया, हमें उस अंधकार से बचाया। अब हम अंधकार का बच्चा नहीं है, हम रोशनी के बच्चे हैं, हम ज्योति के बच्चे हैं। पढ़िए मलाकी पहला अध्याय 6वां वचन। पुत्र पिता का हाँ, और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का क्या करता है? आदर करता है। और नौकर किसका आदर करता है? स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? फिर से शुरुआत से पढ़ना बेटा। पुत्र पिता का हाँ, और दास स्वामी का आदर करता पुत्र है। पिता का और स्वामी और दास स्वामी का आदर करता है। दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरे आदर कहाँ है? कौन पूछ रहा है? परमेश्वर पूछ रहा है। हेलो, हर एक वचन आपसे बात करेगा। किसके लिए बात करेगा? तुमको ठीक करने के लिए, मेरे को ठीक करने के लिए। वचन क्यों बात करता है? आपको और मेरे को क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। मैं अगर पिता है तो मेरा आदर किधर है? हाँ, और यदि मैं स्वामी हूँ, यदि आपका दूसरा कोई स्वामी है क्या? आपका स्वामी कितना है? लो, आपका स्वामी कितना है? एक ही है। बोलता है यदि मैं तुम्हारा स्वामी है तो मेरा आदर किधर है? हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग उस परमेश्वर का भय और उस परमेश्वर के भक्ति के अंदर हम लोग क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। और एक वचन को पढ़िए, रोमियो का किताब 5वां अध्याय 17वां वचन। हमें वो याजक बनाया, हमें वो राजा बनाया। அல்லாமலும் हाँ। ஒருவருடைய மீறுதலினாலே कितना जन का परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया? कितना लोग उल्लंघन किया? एक ही व्यक्ति है ना। एक का उल्लंघन करने के वजह से அந்த ஒருவன் மூலமாய் उस एक व्यक्ति के जरिए மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க क्या आया? एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करने के वजह से सबके ऊपर क्या आ गया? मरण आ गया। पढ़ो, पूरा पढ़ो वचन। கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே। आमीन। हिंदी में पढ़ना बेटा उसको। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, कितना मनुष्य के अपराध के कारण? एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा क्या किया? बोलता राज किया। एक ने अपराध किया, सभी के ऊपर क्या आ गया? मृत्यु आ गया। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, धर्म और किसको पाते हैं? धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं तो क्या मिलता है हमको? यहाँ अनंत जीवन। राज करेंगे। राज किसके साथ? मसीह के साथ। हालेलुया। किसके साथ में राज करेंगे? मसीह के साथ में राज करेंगे। कोलोसियन में हम लोगों ने देखा था, हम पहले अंधकार के थे, बाद में हमें प्रभु ने किधर लेकर आया? उजाले के अंदर क्या किया? लेकर आया। एफेसियन का किताब 2 अध्याय 7वां वचन को पढ़ना। கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி मसीह यीशु में हमको किसके साथ में जिलाया? बोलता है हमको किसके साथ में जिलाया? मसीह के साथ में ही हमें क्या कर दिया? बोलता जिलाया। உன்னதங்களில் அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்தார்। इधर किधर बेटा ने बेटा दिया? बोलता हमको स्वर्गीय स्थानों में। पढ़ो बेटा 2:7।
कि वह अपनी उस कृपा से जो किससे किससे? कृपा से। आज हम लोग जो खड़ा है ना, उसकी कृपा से खड़े हैं, उसकी अनुग्रह से खड़े हैं। हालेलुया। आज हम लोग जो जिंदा है, जीवित है, वो खुदा का क्या है? दया है। हमारे अंदर कौन सा इतना अच्छापन है ना? हमारे अंदर इतना कोई अच्छापन नहीं है, सभी बुरा है। यीशु मसीह को वो जवान आकर बोला, ये अच्छे गुरु। प्रभु ने डायरेक्ट बोला, तूने मुझे अच्छा क्यों बोला, पहले ये बता। जबकि वो अच्छा है, जबकि वो कौन है? अच्छा है। लेकिन हम मानव जाति अच्छा नहीं है। सारा कपट से भरे हुए हम, सारा बुराई से भरे हुए हम लोग आज बचे हैं, जिंदा है। क्या है उसका वजह? उसकी अनुग्रह। उसके अनुग्रह से उसने हमें क्या किया? जिलाया, और उसके साथ में हमको किधर बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। स्वर्गीय स्थान में क्या चलता है? हमेशा स्तुति धन्यवाद। हमेशा क्या चलता है? स्तुति धन्यवाद। ऐसे ने जब वो विजन को देखा, वो विजन में वो 6 पंख से, 2 से उड़ रहा है, 2 से मुंह को बंद कर रहा है ना? 2 से उड़ रहा है, 2 से मुंह को क्या कर रहा है? बंद करके। और क्या कर रहा है वो? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके क्या कर रहा है वो? पूरा स्तुति की आवाज से मंदिर का देव क्या कर रहा है? वहां स्वर्ग में हिल रहा है। अगर यदि हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं, तो यहां भी क्या होना चाहिए? शेकिंग होना जरूरी है। जैसे प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, वो लोग एकत्रित होकर जिस स्थान पर प्रार्थना किए, वो जगह क्या हो गया? हिला कि नहीं हिला? जगह क्या हो गया? हिल गया। लेकिन अब अंतिम समय का नबी कहने के समय पर कहता है, अब जगह को मत हिलाओ, खुद हिलो। क्योंकि तुम बिल्डिंग में, टावर में है, तुम जो घर में बैठकर प्रार्थना करेगा, वो टावर हिलाएगा तो टावर नीचे गिर जाएगा। किधर बदलाव होना चाहिए? तुम्हारे अंदर। तुम जब हिलोगे, मतलब मसीह के अनाइंटिंग के अंदर, मसीह के अभिषेक के अंदर भरपूरी से होकर, जब आप परमेश्वर के साथ में, वो हिलना, वो हिलाना बहुत जरूरी है। जबकि तुम्हारे अंदर से अनवांटेड सारे चीजों को प्रभु क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तुमको ऐसा महसूस होना चाहिए, मैं यहां नहीं, मैं स्वर्ग पर बैठा, मैं स्वर्ग पर बैठी हूं। क्योंकि शास्त्र ले कहता है, हमको स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में हमें क्या कर दिया? प्रभु ने बिठा दिया। 10वां वचन को पढ़ो, उसमें 2:10। ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, हमको प्रभु ने सृष्टि किया किस काम के लिए? भले काम को करने के। किसके अंदर सृजा गए हम? मसीह यीशु के अंदर सृजे गए हैं हम। किसके अंदर? யாருக்குள்ள சிருஷ்டிக்கப்பட்டோமா? கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள். எதுக்காக? நற்கிரியைகளை செய்வதற்காக. வாசிங்க. தேவனுடைய செய்கையா இருக்கிறோம், परमेश्वर का क्रिया है हम, அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார்। पहले से ही वो नियुक्त करके रखा है, ठहरा कर रखा है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। किसके अंदर? मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए हमको प्रभु ने क्या किया गया? सृजा है। आमीन। भले काम। तुम जिधर भी जाओगे ना, तुमको यीशु का ही छाप को छोड़कर आना पड़ेगा। इधर भी जाओगे, तुमको किसका छाप छोड़कर आना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का ही छाप को क्या करना पड़ेगा? छोड़कर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है लोग गटर के अंदर पड़ा है, तुम भी जाकर उस गटर में गिरो ना। उस गटर के अंदर पड़े हुए लोगों के बीच में मैं उजाला का बेटा हूं, मैं उजाला का बेटी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटी हूं करके तुमको क्या करना पड़ेगा? स्थापित करना पड़ेगा। सही है गलत है? हेलो,
सही है गलत है? हर जगह में तुम जहां भी जाओगे वहां प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या बनना पड़ेगा? तुमको गवाह बनना पड़ेगा। अब आइए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7वां वचन को पढ़िए। இதோ மேகங்களுடனே கூட வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள், அப்படியே ஆகும்। ஆமென்। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। किसके साथ आने वाला है? वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, जिन्होंने उन्हें भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे खुद उसके कारण छाती पीटेंगे, और पृथ्वी के सारे खुल उसके कारण क्या करेगी? छाती पीटेगी। ये समय में दुल्हन जमीन में नहीं रहेगी, दुल्हन ऊपर रहेगी। इस समय में दुल्हन किधर रहेगी? नीचे नहीं रहेगी। दुल्हन किधर रहेगी? मध्य आकाश में रहेगी। जैसे यूसुफ अपने पत्नी और बच्चों को महल में छोड़कर अपने भाइयों के बीच में अपने आप को प्रकट करके बताया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को ऊपर मध्य आकाश में छोड़कर अपने भाइयों के बीच में जब प्रकट होगा, उस समय में ये लोग सब क्या करेंगे? रोएंगे, छाती पीटेंगे। हालेलुया। लेकिन सस्ता वाला ये सबको मिक्स कर देता है। सस्ता वाला ये सबको क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। दुल्हन को लेने के लिए जो आ रहा है वो दैट इज सीक्रेट कमिंग। उसको ये दुनिया क्या नहीं करेगी? देखेगी नहीं। प्रभु आकर अपने दुल्हन को क्या करेगा? वो लेकर चला जाएगा। फिर भी सस्ता वाला प्रचार करेगा, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। यहां नबी कहता है वो आ रहा है, यीशु आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है, भविष्यद्वक्ता आ रहा है, याजक और राजा वो आ रहा है, और वो सब में सब कुछ है, वो आ रहा है और कहता है प्रभु यीशु तू जल्दी आ। और क्या कहता है वो? प्रभु यीशु जल्दी आ। उसके बाद में वो रूपांतर पहाड़ में जो दृश्य हुआ, उस दृश्य के बारे में यहां नबी क्या करता है? वर्णन करता है। रूपांतर पहाड़ में जब परमेश्वर के सामर्थ्य वहां छाया गया, उसका वस्त्र श्वेत उस वर्षा के मानिंद, बारिश के मानिंद हो गया। उसी स्थिति में वो महिमा के बादलों के साथ क्या कर रहा है? वो आ रहा है और सारी आंखें उसे देखेगी। उसके बाद में नबी इधर पॉइंट को जिक्र करता है। इसका मतलब वो गुप्त में आने वाला, मतलब ये रैप्चर के बारे में नहीं दर्शाता। ये 7वां वचन। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वो गुप्त आगमन को केवल और केवल संत लोग ही जानेंगे। और लोग जानेंगे? केवल और केवल पवित्र लोग ही जानेंगे, और बाकी लोग इसको क्या नहीं करेंगे? नहीं जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तभी वो नबी कहता है जो वेद प्रमाण से और संस्थाओं के टीचिंग से उसको जो वेदा है, वो लोग भी उसको क्या करेंगे? देखकर विलाप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सारे लोग जो वचन रूपी यीशु को जब देखेंगे, सब लोग विलाप करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। आज जो सच्चाई को हम लोग गांव गांव, नगर नगर, जो कैसे भी कष्ट में, तकलीफ में, यहाँ वहां से पैसा जमा करके हम लोग लोगों के बीच में जाकर जो सच्चाई को प्रीच कर रहा है ना, इस सच्चाई को जितने भी लोग ठुकराए हैं, वे सब रोएंगे, तड़पेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस संभावना को लगभग 2500 साल पहले ही जकरिया नबी ने क्या किया है? भविष्यवाणी किया है। कितना साल पहले?
ये घटना घटने के 2,500 साल, कितना हजार साल, 2,500 साल के पहले ही इसके बारे में कौन जिक्र किया? जकरिया नबी ने क्या किया है? जिक्र किया है। क्या जिक्र किया? पढ़िए जकरिया का किताब 12वां अध्याय 9 और 10 को पढ़िए, मैं समाप्त करता हूं। அந்நாளில் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லா ஜாதிகளையும் அழிக்க பார்ப்பேன். நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேமின் குடும்பத்தின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி, ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள். पढ़िए 9 और 10 12वां अध्याय में। उस समय मैंने उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, अर्थात जिन्हें उन्होंने क्या किया है? भेदा है। और उसके लिए ऐसे रोएंगे, जैसे एकलौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। एकलौता पुत्र बनकर आया कि नहीं आया प्रभु यीशु मसीह? कितना पुत्र बनकर आया? एकलौता पुत्र बनकर आया। उस समय में वे लोग उसको जाने नहीं, उस समय में वो लोग उसको क्या नहीं किया? जाना नहीं है। अगर वो जानते तो महिमामय परमेश्वर को वे लोग क्या नहीं करते? सूली पर चढ़ा देते। हाँ, अगर वे लोग जानते तो वो लोग महिमामय परमेश्वर को सूली पर क्या नहीं करते? नहीं चढ़ाते। हालेलुया। शास्त्र ले हमें वही सिखाता है। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 8वां वचन को पढ़ो। जल्दी। அதை இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்களில் ஒருவரும் அறியவில்லை. इस संसार के हाकिमों में से किसी ने भी क्या नहीं किया? नहीं जाना। किस बात को? यीशु ही वो प्रभु है। जुना करार का यहोवा ही अब नया करार में यीशु में क्या है? वास किया है। वो यीशु ही कौन है? परमेश्वर है। इस संसार के हाकिमों में से किसी ने भी नहीं जाना। हाँ, அறிந்தார்களே, ஆனால் अगर वे जानते तो மகிமையின் கர்த்தரை அவர்கள் சிலுவையில் அறைய மாட்டார்களே. कौन है वो? महिमा का परमेश्वर, महिमामय यहोवा को वे लोग सलीब पर क्या नहीं करते? नहीं मारते। पढ़िए जल्दी। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। और वे लोग तेजोमय परमेश्वर को किधर नहीं चढ़ाते? क्रूस पर नहीं चढ़ाते। बोलो हालेलुया। अब कितना धन्य है, हमको ये ज्ञान प्रभु ने दिया, ये समझ प्रभु ने हमें क्या किया है? दिया है। एक मनुष्य अगर यीशु को रिजेक्ट करता, पापों की क्षमा के लिए जो पाने वाला उस यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को रिजेक्ट करता, इसका मतलब वो अपने आप को अनंत जीवन से क्या करता है? वो वंचित कर लेता है। बोलो हालेलुया। तो यो अन्य जाति का युग जैसे समाप्त होता है, वैसे ही ये सुसमाचार वापस यहूदियों के बीच में प्रकाशित हुआ की है। 11वां अध्याय में जैसा लिखा गया वैसे वो उनके बीच में क्या करेगा? जाएगा। एवं ये जब उनके बीच में जाएगा, उसके पहले दुल्हन ऊपर जाएगी। उसके पहले क्या करेगी? दुल्हन ऊपर जाएगी। ये 100% पक्का है। क्लेश ये दुनिया में गिरने से पहले, बारिश का बूंद इस दुनिया में गिरने से पहले नोहा जहाज के अंदर चला गया। अग्नि और गंधक ऊपर से नीचे गिरने के पहले लोग उस नगर को छोड़कर बाहर
आ गया। हालेलुया। वैसे ही ये दुनिया नाश के अंदर जाने से पहले, क्लेश के अंदर जाने से पहले दुल्हन ऊपर चली जाए। जब तक आप और मैं इस दुनिया में है तब तक क्लेश क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। इसलिए अपने आप को तैयार करो और ऐसे जीवन जियो। आज भी अगर प्रभु आए, मैं मेरा प्रभु के साथ में क्या करूंगा, चले जाऊंगा। मैं मेरे प्रभु के साथ में क्या करेगी, चले जाएगी। इस रीति का जीवन क्या करो, बर्ताव करो। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे। बचे हुए बातों को हम लोग अगले हफ्ते में देखेंगे। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे। एक अनाउंसमेंट रह गया है। ये 12 तारीख को कॉटेज मीटिंग चाहिए भाई संग्राज के घर में, मातोश्री अमरनाथ के अंदर। आप सब लोगों को मालूम है इनका जूनागढ़ जो मातोश्री पे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, वहां 12 तारीख को कॉटेज मीटिंग है। हम लोग शाम 7 बजे तक वहां सब लोग एकत्रित हो जाएंगे। आने वाले 12 तारीख भाई तंगराज के घर पे कॉटेज मीटिंग है। हम सब लोग वहां मौजूदगी में रहेंगे। उनका मातोश्री नगर फ्लैट नंबर 003 ये विंग ग्राउंड फ्लोर नियर गांवदेवी मंदिर अमरनाथ बीच। भाई तंगराज गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। जिंदगी 2 दिन की है ये जिंदगी, इस जिंदगी में यीशु न हो तो बेकार है जिंदगी। जिंदगी 2 दिन की है ये जिंदगी, इस जिंदगी में यीशु न हो तो बेकार है जिंदगी। कल का भरोसा हम किससे करें, कल का भरोसा हम किससे करें। मौत खड़ी है देखो दौड़ पे, कल का भरोसा हम किससे करें। मौत खड़ी है देखो दौड़ पे, मौत को जीत लिया है यीशु मसीह। जिंदगी 2 दिन की है ये जिंदगी, इस जिंदगी में यीशु ना हो तो बेकार है जिंदगी। जिंदगी 2 दिन की है ये जिंदगी, जहाँ भी देखो रोती है जिंदगी, जहाँ भी देखो घुट घुट के मरती है जिंदगी। हर बीमारी हर गरीबी से छुड़ाता है यीशु मसीह। जिंदगी 2 दिन की है ये जिंदगी, इस जिंदगी में यीशु ना हो तो बेकार है जिंदगी। जिंदगी 2 दिन की है ये जिंदगी, इस जिंदगी में यीशु ना हो तो बेकार है जिंदगी। हालेलुया। आइए हम लोग जो स्थान पर है उस स्थान पर सब लोग खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे। एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे हम। उसके बाद में हम लोग आखिरी गीत गाकर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अपने कलीसिया में जितने भी बच्चे लोग शादी के उम्र में हैं, उन बच्चों की शादी होने के लिए और परमेश्वर उनके लिए जो जोड़ी को बनाकर रखा है वहां उनको ले जाकर जोड़ने के लिए हम दुआ करेंगे, ताकि अपने कलीसिया के अंदर हर एक बच्चे लोग क्या होना चाहिए, अपने अपने जोड़ी के साथ में प्रभु के घर में क्या आकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। आखिरी पेड़ आने तक उठाए ले जाने वाला का काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने कलीसिया में जितने भी जवान बच्चे हैं
उनका शादी समय पर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहन सुधा जसमन है, वो प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுப்பா இந்த கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்காக உடைய பாதம் படிக்கல ஆண்டவரே. இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. வருகிறோம் தகப்பனே, பாடிய பாடல்கள் வசனங்கள் ஆண்டவரே. இயேசுப்பா அப்பா இந்த ஆராதனை முழுவதையும் நீங்க பொறுப்படுத்தி வழிநடத்தியது போல ஆண்டவரே. இயேசுப்பா அப்பா இந்த விண்ணப்பங்களுக்கு எங்களுக்கு செவி கொடுப்பீர்கள் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா அப்பா. வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இயேசுப்பா, சபைக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே இயேசுவே ஏற்ற நாட்கள் ஆண்டவரே இயேசுப்பா, அந்த திருமண காரியங்கள் கைகூடி வரதுக்கு ஆண்டவரே நீங்கள் அனுக்கிரகம் செய்யுமாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா அப்பா. அந்த மணமகன் எந்த இடத்துல நீங்க வைத்திருக்கீங்களோ ஆண்டவரே இயேசுப்பா, அவர்கள் அதை கண்டு கொள்றதுக்கு ஆண்டவரே இயேசுப்பா வழிவாசல்களை திறந்து கொடுத்து ஆண்டவரே இயேசுப்பா இந்த காரியங்கள் ஒவ்வொரையும் ஆண்டவரே கைகூடி வரமாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். ஆமென். आइए हम सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद ऐलान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। मेरे प्रभु बीते दिनों में तुमने हम सबको अपनी आंखों के पुतले की मानंद संभाल कर आज तेरे भवन में हम लोग आने के लिए तूने सहायता की, मदद की, रहम किया। इसके लिए आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चे लोग सुखरूपी से हम आपके भवन में आने के लिए आपने अनुग्रह किया प्रभु, आपने लेकर आया। अभी हम लोग जाने वाले हैं, सुखरूपी से तू लेकर जाना प्रभु। इस दान के लिए और दशवांश के लिए हम दुआ करते हैं। आपके बच्चे लोग आपसे लेकर आपके लिए जो दिए हैं, इसके प्रीति जितने भी आशीषों को आपने रखा वो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों को मिलने देना राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका कलाम कहता है मेरे घर में तुम खाली हाथ नहीं आना। हाँ प्रभु, आपके लिए आपके बच्चे लोग बड़ी बोझ के साथ में जो भी ले आकर रखे हैं इसे आप स्वीकार कीजिए प्रभु। 100 गुना बढ़ाकर आप अपने बच्चों को दे देना। जो बीमार है उन्हें चंगा करना परमेश्वर, जो कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन्हें छुटकारा देना। और परमेश्वर हर घर परिवार की जरूरतों को तो पूरे करना। तेरे नाम की महिमा, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना नाथ। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। जीसस। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कलीसिया कहे आइए हम लोग आखिरी गीत गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, भाई तंगराज के घर में आने वाले 12 तारीख को गाइडेंस मीटिंग है। कलीसिया से विनती है हम सब लोग 12 तारीख शाम 7 बजे भाई तंगराज के घर में एकत्रित हो जाएंगे।